جسٹس سرفراز ڈوگر قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بن گئے۔ ایوان صدر میں حلف برداری کی پروقار تقریب۔ صدر آصف علی زرداری نے جسٹس سرفراز ڈوگر سے حلف لیا۔ منتخب نمائندوں، جج صاحبان اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی تقریب میں شرکت۔ سپریم کورٹ میں 6 مستقل اور ایک ایکٹنگ جج کی تقریب حلف برداری۔ جسٹس محمد ہاشم خان کاکڑ، جسٹس محمد شفیع صدیقی اور جسٹس صلاح الدین پنہور نے حلف اٹھا لیا۔ جسٹس شکیل احمد، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس اشتیاق ابراہیم نے بھی مستقل جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ جسٹس میاں گل حسن انزب کی بطور ایکٹنگ جج سپریم کورٹ حلف برداری۔ چیف جسٹس شہزاد آفریدی نے ججز سے حلف لیا۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز اور وکلاء کی بڑی تعداد کی تقریب میں شرکت۔ سندھ اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی قائم مقام چیف جسٹس کی حلف برداری۔ جسٹس محمد جنید غفار قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بن گئے۔ کراچی میں ہونے والی تقریب میں گورنر کامران خان ٹسوری نے ان سے حلف لیا۔ جسٹس سید محمد عتیق شاہ نے پشاور ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ گورنر ہاؤس پشاور میں تقریب حلف برداری۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے حلف لیا۔ ایس آئی ایف سی کے تحت گرین پاکستان انیشیٹو کے مختلف منصوبوں کا آغاز۔ جی پی آئی کے سمارٹ ایگری فارم، گرین ایگری مال اور تحقیقی سہولت مراکز کا افتتاح آج ہوگا۔ آرمی چیف اور وفاقی اور صوبائی حکومت کی اہم شخصیات افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گی۔ کارپوریٹ فارمنگ میں استعمال ہونے والی زرعی مشینری اور جدید ٹیکنالوجی کی نمائش بھی تقریب کا حصہ۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی۔ 100 انڈیکس میں 900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,13,000 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ حکومت کی معاشی اصلاحات کے مثبت نتائج۔ آئی ایم ایف پروگرام کی شرائط سے آگے بڑھ کر جامع اصلاحات۔ شعبہ توانائی کی تنظیم نو، ٹیکس کی بنیاد میں توسیع اور انسداد بدعنوانی کی کوششیں شامل۔ ایس آئی ایف سی کے ذریعے صنعتی بحالی کی کوششیں۔ سخت مانیٹری پالیسی اور عالمی قیمتوں میں کمی کی بدولت افراط زر میں کمی۔ ترکی اور پاکستان کا اقتصادی اور دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ تجارتی حجم $5 ارب تک بڑھانے سے متعلق تعمیری گفتگو۔ پاکستان ترک سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی اور سہولتیں جاری رکھے گا۔ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی حمایت کرتے رہیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ترکیہ پاکستان کا مکمل حامی۔ آزاد فلسطینی ریاست کے لیے مل کر کوششیں جاری رکھیں گے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کی ملاقات۔ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ دو طرفہ تعلقات زراعتی شراکت داری میں تبدیل کرنے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کی صدارت میں ترکیہ پاکستان اعلیٰ سطح اسٹریٹجک تعاون کونسل کا اجلاس۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی شرکت۔ نتیجہ خیز اقدامات، کاروباری امور اور دو طرفہ سرمایہ کاری آسان بنانے پر زور۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ترک کمپنیوں کو زراعت، نئی ٹیکنالوجیز، توانائی، کان کنی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تاریخی تعلقات تصویراتی شراکت داری میں تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ ترک صدر کا دورہ اور اسٹریٹجک تعاون کونسل میں شرکت دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں مزید بہتری کا باعث ہوگا۔ پاکستان اسرائیلی وزیر اعظم کے حالیہ بیان کی مذمت کرتا ہے۔ ہم سعودی عرب کی خود مختاری پر کسی صورت آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی کی ہفتہ وار بریفنگ۔ انسانی اسمگلنگ اور بیرون ممالک بھیک مانگنے میں ملوث عناصر کے خلاف گھیرا تنگ۔ ملک کی بدنامی اور انسانی جانوں سے کھیلنے کے واقعات کے تدارک کے لیے مؤثر قانون سازی۔ ایوان بالا میں 3 بل متفقہ طور پر منظور۔ تینوں بل وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیے۔ انسانی اسمگلنگ اور غیر قانونی ہجرت روکنے کے لیے سزاؤں میں اضافہ۔
हरनाई की तहसील शाहरग में धमाका, 9 कानकन जाम बहक, 6 जख्मी। धमाका खेज मवाद सड़क के किनारे नस्ब किया गया था। धमाका उस वक्त हुआ जब कानकनों की गाड़ी गुजर रही थी। वजीर आला बलूचिस्तान की शदीद मजम्मत, अमन दुश्मनों के अजाइम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशत गर्द किसी सूरत माफी के मुस्तहिक नहीं। मीर सरफराज बुगटी। सदर ममलकत और वजीर आजम की बलोचिस्तान के इलाके शाहरग में धमाके की मजम्मत, जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत, जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। निहत्ते और मासूम शहरियों की जान माल को नुकसान पहुंचाने वाले दरिंदों को कीमत चुकाना होगी। दोनों रहनुमाओं का मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे तक कोशिशें जारी रखने के अज़म का इरादा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तखरीबी कार्रवाइयां बेरकाब, मजमून सरगर्मियों से इलाकाई सलामती को खतरात लाहिक। चिकोठी, नेजापीर, चिड़िचकोट, रकचकरी, दिवा में भारतीय आईईडीज मिलने और फटने के वाकयात में इजाफा। भारतीय फौज डबल एजेंटों के जरिए असलहे की स्मगलिंग में मुलव्वस। दूसरे ममालिक में भारतीय दरअंदाजी और तखरीबी सरगर्मियों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान इसे भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। वजीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वक़ार अहमद नूर। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का पर्दा चाक। गुज़श्ता साल जुलाई में होने वाले कत्लेआम में मुलव्वस क्रैकडाउन में 1400 अफराद हलाक हुए। अक्सर को बांग्लादेश की फोर्सेज ने निशाना बनाया। साबिक हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेज और अवामी लीग इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हुकूक की रिपोर्ट जारी। अमरीका और रूस मुज़ाकरात पर यूक्रेन और यूरोपीय ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ात। जंग के खात्मे से मुतालिक मुज़ाकरात की मेज़ पर यूक्रेन भी हमारे साथ होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यकीन दहानी, खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से हमारी शिरकत के बगैर किसी भी मुआहदे को कबूल नहीं करेंगे। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की धमकी। बड़ी बड़ी तुझे मुझे देखने, धड़के देखो धड़के, जीतो बाजी लड़के, धड़के देखो धड़के, जीतो बाजी लड़के। सरफरीकी सीरीज का ताज किसके सर सजेगा? फाइनल में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड होंगे कराची में मद्दे मुकाबिल। मुकाबला दिन 2 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार फतह के बाद ग्रीन शर्ट्स के हौसले बुलंद। फाइनल के लिए टिकट की कम से कम कीमत 500 रुपए मुकर्रर। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में सफर आज मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान में टूर के दौरान ट्रॉफी को 10 शहरों में ले जाया गया। हर शहर में ट्रॉफी को खूब पजीराई मिली। शायकीन क्रिकेट, नौजवान खिलाड़ियों और शहरियों ने सेल्फियां ली। चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले 19 फरवरी से शुरू होंगे। मैचेस कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में खेले जाएंगे। तमाम मैचेस देखें पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी ने अपने खजानों के मुंह खोल दिए। टाइटल जीतने वाली टीम ट्रॉफी के साथ 62 करोड़ 22 लाख पाकिस्तानी रुपयों से जायद की रकम उड़ा ले जाएगी। रनर अप टीम चैंपियन से आधी रकम की हकदार करार पाएगी, जबकि सेमीफाइनल और हारने वाली टीमें चौथाई रकम हासिल कर पाएंगी। इवेंट में शरीक हर टीम $1,25,000 वसूल करेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जश्न बहारां की तैयारियों से मुतालिक इजलास। वजीर दाखिला ने जश्न बहारां के इंतजामात का जायजा लिया। पुलिस लाइन्स में शमा परेड की रिहर्सल का मुआयना भी किया। इस्लामाबाद के शहरी 25 से 27 फरवरी तक जश्न बहारां से महजूज हो सकेंगे। इसका मकसद पाकिस्तान की सकाफत और कल्चर को उजागर करना है। जश्न बहारां में अवाम की तफरीह के लिए पहली बार रवायत से हटकर मुनफरिद प्रोग्राम्स पेश किए जाएंगे। मोहसिन नकवी। तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रुकन सरदार अब्दुल रब निश्तर की 67वीं बरसी। सूबा पंजाब के पहले गवर्नर और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाएतमाद साथी थे।
तहरीक खिलाफत में मौलाना मोहम्मद अली जौहर के दस्त बाजू बने। खिदमत के एतराफ में मुल्तान का नेशनल मेडिकल कॉलेज और पेशावर का नेशनल हॉस्पिटल उनके नाम से मंसूब किया गया। बहावलपुर के सहराय चोलिस्तान में 20वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली प्रीपेयर्ड कैटेगरी के पहले मरहले का आगाज। फासला 250 किलोमीटर पर मुहित। 3 खातीन ड्राइवर समेत 47 रेसर्स मद्दे मुकाबिल। शायकीन की बड़ी तादाद सहराय चोलिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद। क्वालिफाइंग मरहले में जुनेद होद पहले नंबर पर थे। चीन में एशियन सरमाई खेल स्नोबोर्ड हाफ पाइप के मुकाबले खराब मौसम की नजर। बेहतरीन क्वालिफाइंग स्कोर पर सोने के तमगे तकसीम। खवातीन में जापान की सारा शिम्सू, मर्दों में जनूबी कोरिया के किम ग्योन कामयाब करार पाए। क्रॉस कंट्री स्कीइंग का टाइटल चीन के नाम रहा। और कतर में WTA 1000 दोहा ओपन क्वार्टर फाइनल मरहला मुकम्मल। 3 मरतबा की दिफाई चैंपियन पोलैंड की एगा स्वियाटेक सेमीफाइनल में पहुंच गए। ट्यूनिस की एनएस जॉबर का सफर तमाम। लिथुआनिया की जेलिना ओस्टापेंको ने स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। रूस की एकातरीना अलेक्जेंड्रोवा और अमेरिका की आमिंदा एंसमोवा भी लास्ट 4 में शामिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल। वेदर अपडेट लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर से कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वकला बरादरी के नुमाइंदों समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जजेस और एक कायम मकाम जज ने भी अपने फ़राइज़ मनसबी संभाल लिए हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने नए तैनात होने वाले जजेस से हल्फ लिया। तफसील बताएंगे एजाज हुसैन। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में होने वाली हल्फ बर्दारी तकरीब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम से हल्फ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम जज की हैसियत से हल्फ उठाया। सुप्रीम कोर्ट में जज की हैसियत से मनसब संभालने से कबल जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस आमिर फारूक बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर बतौर सीनियर तरीन जज सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस शकील अहमद पेशावर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। 6 जजेस के हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कुल तादाद 22 हो गई है। 19वीं आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है। एजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। गवर्नर हाउस कराची में कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद की गई। जस्टिस मोहम्मद जुनेद गफ्फार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठाया। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया। जस्टिस मोहम्मद जुनेद गफ्फार 2013 में सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल जज तैनात हुए। जस्टिस मोहम्मद जुनेद गफ्फार को 2014 में हाई कोर्ट का मुस्तकिल जज तैनात कर दिया गया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में एडिशनल अटॉर्नी जनरल सिंध हाई कोर्ट के जजेस, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर ने शिरकत की। जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह ने पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने जस्टिस SM अतीक शाह से बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट उनके ओहदे का हल्फ लिया।
नए कायम मकाम चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में हुई। तकरीब में वजीर आला KPK सरदार अली अमीन खान गंडापुर समेत पेशावर हाई कोर्ट के जजेस, वकला और आला सरकारी हुकाम ने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी और सूबाई हुकूमत की अहम शख्सियात आज खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की सहूलियात का दौरा करेंगे। तकरीब में वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, मुसद्दिक मलिक, राना तनवीर हुसैन और मरियम नवाज समेत दीगर अहम शख्सियात भी शिरकत करेंगी। दौरे में GPI के स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह किया जाएगा। GPI की जानिब से कॉर्पोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली ज़राई मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। ज़राई शोबे की तरक्की और जिद्दत से आगाही के लिए हुकूमती शख्सियात मॉडल फार्म्स के दौरे भी करेंगी। पीरोवाल और मुजफ्फरगढ़ में तैयार किए गए मॉडल फार्म्स किसानों को जदीद ज़राई तकनीकी सहूलतों से आगाही फराहम करेंगे। SIFC के तहत ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की कोशिशों से ज़राई शोबे खुसूसन चोलिस्तान में नुमाया कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। चोलिस्तान के मकामी अफराद की फलाह बहबूद के लिए ज़राई तरक्की, पानी की बचत और बर वक्त इस्तेमाल के लिए जदीद सेंट्रल प्यूट सिस्टम फॉल कर दिया गया है। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर GPI हदीका हबीब और दीगर हुकाम का कहना है कि GPI चोलिस्तान के लिए एक गेम चेंजर मंसूबा साबित होगा। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पाकिस्तान खसूसन चोलिस्तान के लिए बहुत गेम चेंजर मंसूबा साबित होगा। इस मकसद के तहत कॉर्पोरेट फार्मिंग, मयारी बीज, जदीद मशीनरी, जदीद टेक्नोलॉजी और किसान के अंतक मेहनत की वजह से ज़्यादा मुनाफा बख्श और ज़्यादा पैदावार हासिल की जा रही है चोलिस्तान में। मेरा काम सेंट्रल पिवट इरिगेशन सिस्टम पे है। शुरू में हमने अमेरिकन बेस सेंट्रल पिवट सिस्टम इधर लगाए थे, चोलिस्तान में लगाए थे, बिल्कुल बैरन सैंड ड्यून थे और इधर से हमने स्टार्ट लिया था। अपने कंट्री पाकिस्तान में HIT में सेंट्रल पिवट्स तैयार कर रहे हैं और आपके सामने है कि कैसे ये सैंड ड्यून बिल्कुल लश ग्रीन खड़े हैं। तो बेसिकली सेंट्रल पिवट इरिगेशन सिस्टम है, इसको डिज़ाइन किया गया है लेबर शॉर्टेज को देखते हुए, वाटर शॉर्टेज को देखते हुए। इसमें चोलिस्तान में रेत का जो प्रोपोर्शन है सॉइल फॉर्मेशन के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो इसमें अगर हम फ्लड इरिगेशन करते हैं तो फ्लड इरिगेशन में बहुत ज़्यादा पानी लग जाता था। जो हमारा सेंट्रल पिवट इरिगेशन सिस्टम है ये बेसिकली पानी के ऊपर से शार्पनिंग करता है और फसलों को उतना पानी देता है जितनी फसल को ज़रूरत होती है। तो इससे हमें जो हमारी चोलिस्तान कंडीशन है जिसमें रेत की ज़्यादा प्रोपोर्शन है उसमें फसल को उगाने में हमें कामयाबी हासिल हुई है। ग्रीन इनिशिएटिव का मंसूबा जो है वो चोलिस्तान और पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। हमारे यहाँ पर इस वक्त लैब की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जा रही हैं जिसमें हम सॉइल एनालिसिस और वाटर एनालिसिस भी प्रोवाइड करते हैं। सॉइल एनालिसिस में हमारे पास तमाम पंजाब लेबॉर्ट्री से अप्रूव्ड हुए हुए पैरामीटर्स हैं जिसमें हमारे पास EC, pH और EC ऑर्गेनिक मैटर और सैचुरेशन ऑफ सॉइल हो गया। बहुत से तरक्याती ममालिक में ये मशीनरी इस्तेमाल होती है और पाकिस्तान ये मशीनरी खुद बना रहा है और खुद ही इस्तेमाल कर रहा है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखने में आ रहा है। 100 इंडेक्स इस वक्त 310 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,13,875 पर ट्रेड कर रहा है। दौरान ट्रेडिंग मार्केट में 915 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा भी देखा गया। अब तक मार्केट में 375 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ जिसमें 199 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेज़ी, 160 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 16 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। हुकूमत की माशी इस्लाहात के मुस्बत नताइज आ रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और IMF प्रोग्राम को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अफरात ज़र और अवाम की क़ुव्वत ख़रीद कर्ज़ों को बहरान और माशी इस्लाहात को फजूल करार दिया जा रहा है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की शराइत से आगे बढ़कर जामे इस्लाहात की हैं जिनमें तवानाई के शोबे की तंजीम नौ, टैक्स की बुनियाद में तोसी और इंसदाद बदउनवानी की कोशिशें शामिल हैं। हुकूमत ने SIFC के जरिए सनती बहाली की भी कोशिशें शुरू की हैं। हुकूमत ने गर्दिशी कर्जों को कंट्रोल करने के लिए तवानाई के शोबे में टैरिफ, रैशनलाइजेशन, सरकारी इदारों की निजकारी और कर्जों के इंतजाम में बेहतरी की है। इन इस्लाहात से पाकिस्तान के कर्जों की सूरत हाल में बेहतरी आई है और बहरान से निमटने के लिए कई अहम इक़दाम किए गए हैं।
पाकिस्तान और तुर्की ने दो तरफा ताल्लुकात को बाहमी तौर पर फायदेमंद स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में तब्दील करने के अज़्म का इआदा किया है। दोनों मुल्कों की आला सतह स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल के इजलास में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बेहतर कारोबारी मामलात और दो तरफा सरमायाकारी के जरिए इक्तिसादी ताउन को मज़ीद गहरा करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं उमर फारूक। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान ने आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाक तुर्क दो तरफा ताल्लुकात के मस्बत अंदाज पर इत्मीनान का इजहार किया और इन ताल्लुकात को बाहमी तौर पर फायदेमंद तज़वीराती शराकत दारी में तब्दील करने के अज़्म का इआदा किया। इजलास में दोनों अतराफ के मुतलका वुज़रा ने ताउन के मुख्तलिफ शोबों का अहाता करने वाली 9 मुश्तरका कायमा कमेटियों की पेश रफ्त की रिपोर्ट्स पेश की। सेहत और IT की 2 नई मुश्तरका कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की गईं। पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी और तुर्क रहनुमाओं के साथ साथ आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के इजलास में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क कंपनियों को दावत दी कि वो पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में बेपनाह मौके से फायदा उठाएं। उन्होंने ज़राअत, नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, तवानाई और कानकनी समेत दीगर शोबों में बाहमी फायदेमंद ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू और कश्मीर के तनाज़े पर सदर उर्दवान के मजबूत, मुस्तकिल और उसूली मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया और तुर्किया के कौमी मफाद के बुनियादी मसाइल पर पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इस दौरान मशरिक़ वुस्ता की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 रियासती हल के लिए पाकिस्तान के मुतालबे का इआदा किया, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की मुतलका करारदादों के मुताबिक 1967 से पहले की सरहदों और अल-कुद्स अल-शरीफ को उसका दारुल हुकूमत बनाने के साथ एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का तस्वुर किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार किया। इस मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के F8, F9 इंटरचेंज को तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान के नाम से मंसूब करने की तकरीब हुई। सादा और पुरवकार तकरीब में मुअज़्ज़ज़ मेहमान सदर रजब तैयब उर्दवान और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज की तख्ती की नकाब कुशाई की। पाकिस्तान और तुर्किया ने आला सतह तज़वीराती ताउन काउंसिल के 7वें इजलास में तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है ताकि बाहमी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाया जा सके। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और तुर्की ने बाहमी मफाद में तिजारत, मईशत, तवानाई, दिफा, सियाहत और अवामी रवाबित के शोबों में दो तरफा ताउन मज़ीद बेहतर बनाने के अज़्म का इआदा किया है। ये इत्तेफाक राय सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और उनके तुर्क हम मनसब रजब तैयब उर्दवान के ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान हुआ। इस मुलाकात का अहवाल आपको बताएंगे मोहम्मद नवीद असहर। सदर आसिफ अली जरदारी और उनके तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दोआन के दरमियान बातचीत में दोनों मुल्कों के तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि तुर्क सदर के इस दौरे से दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। सदर मुमलकत का कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। पाकिस्तान तुर्क कारोबारी इदारों की जानिब से पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट और मईशत के अहम शोबों में मजीद सरमायाकारी के ख्वाहां हैं। उन्होंने दोनों मुल्कों के बैंकारी शोबों में ताउन बढ़ाने जबकि दो तरफा तिजारती हजम को इसकी भरपूर सलाहियत तक बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। सदर मुमलकत ने कहा कि सियाहत और अवामी रवाबत के फरोग के लिए पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन फिजाई रवाबत बढ़ाने की जरूरत है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मसाइल बिलखसूस गजा और शाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। क़यादत की तरफ से आलमी और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का कश्मीरियों के हक़ खुद-इरादगियत की उसूली हमायत पर शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर ने दो तरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए तुर्किया के अज़्म का इआदा करते हुए कहा कि वो तुर्किया की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की तरगीब देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि तुर्किया पाकिस्तान के साथ दो तरफा तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने का ख्वाहां है। सदर रजब तैयब उर्दवान ने कब्रस पर पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल हमायत पर सदर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने अपना असूली मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा बातचीत के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। इससे पहले तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ऐवान सदर पहुंचे तो सदर आसिफ अली जरदारी ने उनका इस्तकबाल किया। बच्चों ने मेहमान सदर को गुलदस्ता पेश किया। तुर्क सदर की अहलिया अमीना उर्दवान भी उनके हमरा थीं। इस मौके पर खातून अव्वल आसवा भुट्टो जरदारी भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थीं। सदर आसिफ अली जरदारी ने सदर उर्दवान, तुर्क खातून अव्वल और वफ्द के एजाज में इशाइये का एहतमाम भी किया।
ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے اپنی اہلیہ اور خاتون اول کے ہمراہ صدر آصف علی زرداری کو الیکٹرک کار کا تحفہ پیش کیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے الیکٹرک کار ڈرائیو کی۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان، صدر آصف علی زرداری اور ترکیہ کی خاتون اول بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ جائیں گی الفتیں اور بھی مزید، پاکستان کہہ رہا تمہیں خوش آمدید، نیا سفر نیا چلن لایا ہے پیغام امن، رجب طیب ایردوان ہوگی دیکھو نئی سحر، آیا خوشی کا ہے شگن، رجب طیب ایردوان۔ ہے ارادے اور خیال بھی، سچا ہے وعدوں کا بے مثال بھی، نیا سفر نیا چلن لایا ہے پیغام امن، رجب طیب ایردوان ہوگی دیکھو نئی سحر، آیا خوشی کا ہے شگن، رجب طیب ایردوان۔ مظلوموں کا دوست ہے یہ لاجواب ہے، دشمن اسلام کا برا خواب ہے، نیا سفر نیا چلن لایا ہے پیغام امن، رجب طیب ایردوان ہوگی دیکھو نئی سحر، آیا خوشی کا ہے شگن، رجب طیب ایردوان۔ جائیں گی الفتیں اور بھی مزید، پاکستان کہہ رہا تمہیں خوش آمدید، نیا سفر نیا چلن لایا ہے پیغام امن، رجب طیب ایردوان ہوگی دیکھو نئی سحر، آیا خوشی کا ہے شگن، رجب طیب ایردوان۔
बेमिसाल भी, नया सफर नया चलन लाया है पैगाम अमन रजब तैयब एर्दोआन। होगी देखो नई सहर, आया खुशी का है शगन रजब तैयब एर्दोआन। मजलूमों का दोस्त है ये लाजवाब है, दुश्मन इस्लाम का बुरा ख्वाब है। नया सफर नया चलन लाया है पैगाम अमन रजब तैयब एर्दोआन। होगी देखो नई सहर, आया खुशी का है शगन रजब तैयब एर्दोआन। जाएंगी उल्फतें और भी मजीद, पाकिस्तान कह रहा तुम्हें खुशामदीद। नया सफर नया चलन लाया है पैगाम अमन रजब तैयब एर्दोआन। होगी देखो नई सहर, आया खुशी का है शगन रजब तैयब एर्दोआन। है इरादे और ख्याल भी, सच्चा है वादों का बेमिसाल भी। नया सफर नया चलन लाया है पैगाम अमन रजब तैयब एर्दोआन। होगी देखो नई सहर, आया खुशी का है शगन रजब तैयब एर्दोआन। मजलूमों का दोस्त है ये लाजवाब है, दुश्मन इस्लाम का बुरा ख्वाब है। नया सफर नया चलन लाया है पैगाम अमन रजब तैयब एर्दोआन। होगी देखो नई सहर, आया खुशी का है शगन रजब तैयब एर्दोआन। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन की जानिब से गाड़ी का तोहफा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर के हमरा गाड़ी ड्राइव की और दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का भी तबादला ख्याल हुआ। इसके अलावा आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मज़ीद ताल्लुकात जो है वो मजबूत होंगे। दो तरफ़ा बाहमी ताउन को फ़रोग़ मिला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन की जानिब से इलेक्ट्रिक गाड़ी का तोहफा दिया गया है, जो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन के हमरा इस गाड़ी में ड्राइव की। उनके साथ खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। पाकिस्तान 2030 तक 30% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल करने की जो है वो हिकमत अमली रखता है और इलेक्ट्रिक पर गाड़ियाँ शिफ्ट करने से जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसके ख़ात्मे के हवाले से भी यकीनी तौर पर मदद हासिल होगी। आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन की जानिब से इलेक्ट्रिक गाड़ी का तोहफा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन के हमरा ये गाड़ी ड्राइव की।
सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके तुर्की रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम ने सदर रजब तैयब एर्दोगान को रुखसत किया। तुर्क सदर की पाकिस्तान में मसरूफियात के हवाले से अहवाल आपको बताएंगे मोहम्मद मज़हर अब्बास। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनकी अहलिया अमीना एर्दोगान को रुखसत किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने हाथ हिलाकर खुदा हाफिज कहा। दौरे के दौरान पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातों में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बाहमी रवाबित के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा किया गया। मईशत, तवानाई, दिफा, सियाहत और अवामी रवाबित के शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने समेत तिजारत और सरमायाकारी को मज़ीद वुसअत देने पर जोर दिया गया। तनाज़ा कश्मीर और कब्रिस के मामले पर एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने के अज़्म का अदा किया गया। पाकिस्तान आला सतही स्ट्रेटेजिक ताउन कौंसिल में नतीजा खेज इक़दामात, कारोबारी अमूर और दो तरफ़ा सरमायाकारी आसान बनाने पर जोर दिया गया। तुर्क कंपनियों को ज़राअत, नई टेक्नोलॉजी, तवानाई, कानकुनी और दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत दी गई। मसला जम्मू और कश्मीर और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए मिलकर कोशिशें जारी रखने के अज़्म का अदा किया गया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अलामिये पर भी दस्तखत हुए। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 24 मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों का तबादला हुआ। दो तरफा तिजारती हजम $5 अरब तक बढ़ाने के अज़्म का अदा किया गया। बिजनेस फोरम में सीपैक और इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल के दरमियान तिजारत के मौके से भरपूर इस्तिफादा करने की अहमियत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती नई बुलंदियों पर ले जाने के अज़्म का भी अदा किया गया। पाकिस्तान और तुर्की ने दो तरफा ताल्लुकात को बाहिमी तौर पर फ़ायदेमंद स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म का अदा किया है। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेट ने इंसानी स्मगलिंग, बैरून मुल्क भीख मांगने और नौमर्द लड़कियों को जिस्म फरोशी के लिए बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्वस अफराद को सख्त सजाएं देने से मुतालिक 3 अहम बिल्स मंजूर कर लिए हैं। तीनों बिल्स वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किए। सेनेट इजलास की कार्रवाई की मज़ीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे अरसलान असद से, जो हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अरसलान, आगाह कीजिएगा, कानून साजी हुई है, 3 अहम बिल मंजूर किए गए हैं सेनेट में, क्या अहवाल है आज की कार्रवाई का? जी मनाजिर, आज सदर नशीन सेनेटर शेर रहमान की सदारत में सेनेट इजलास में वज़ीर पार्लिमानी उमूर आज़म नज़ीर तारड़ ने 3 कानूनी बिल पेश करते हुए कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन ले जाने वाली कश्तियों के मुसलसल हादसात हो रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान से उम्रा ज़ायरीन की आड़ में बेकारी बैरून मुल्क जाकर मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं, जबकि नौउम्र लड़कियों को जिस्म फरोशी के मकासद के लिए पाकिस्तान से बाहर भिजवाया जाता है, जिससे पाकिस्तान की बहुत बदनामी हो रही है। इन बिल्स का मकसद जो है, इन जराइम में मुलव्वस अफराद को 3 से लेकर 10 साल तक कैद व जुर्माने की सजाएं देना है। बाद में वफाकी वज़ीर ने 3 कानूनी बिल पेश किए। इनमें तारकीन वतन की स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2025, रोकथाम ट्रैफिकिंग इन पर्सन तरमीमी बिल 2025 और इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 में मजीद तरमीम का बिल शामिल है। ऐवान ने तीनों बिल्स की मुतफिका मंजूरी दी। सेनेट का इजलास जो है वो पीर की दोपहर 4 बजे तक मुलतवी किया गया। जी मनाजिर, बहुत शुक्रिया अरसलान आपका हमें अपडेट करने के लिए। हरनाई की तहसील शाहरग में सड़क किनारे धमाके में 9 कानकन जाँ बहक, जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। धमाका उस वक्त हुआ जब कानकनों की गाड़ी गुजर रही थी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने बलोचिस्तान के ज़िला हरनाई के इलाके शाहरग में धमाके के नतीजे में कानकनों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के अफरीद के खात्मे के लिए सरगर्म अमल है। निहत्ते और मासूम शहरियों की जान और माल को नुकसान पहुँचाने वाले दरिंदों को बहुत सख्त कीमत चुकाना होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी जाँ बहक अफराद के वरसा से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि मुलव्वस दहशतगर्दों को जल्द अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। बलोचिस्तान हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों के साथ है। हम दुश्मनों के अज़ाइम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला आज़ाद जम्मू कश्मीर वकार अहमद नूर कहते हैं कि कंट्रोल लाइन पर भारत की तखरीबकारी की कार्रवाइयाँ बेनकाब हो चुकी हैं। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से नस्ब किए जाने वाले बारूदी मवाद के धमाकों से मुतादिद मासूम शहरी जख्मी और शहीद हो चुके हैं। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। वज़ीर दाखिला आज़ाद जम्मू और कश्मीर वकार अहमद नूर ने कहा कि भारत LOC पर धमाका खेज मवाद की नकलो हमल और इस्तेमाल से तकरीब कारी कर रहा है। भारतीय खिलाफ वर्जी, IDEs और हथियारों की नकलो हमल खित्ते में अमन और सलामती के लिए खतरा है। 2016 से भारतीय फौज का IDEs लगाने का रुझान तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। अब तक 54 IDEs के वाक़यात लाइन ऑफ कंट्रोल के इस बार रिपोर्ट हुए हैं।
इन वाक़यात में मुतअद्दिद बेगुनाह जानों का ज़िया भी हुआ है। भारतीय फ़ौज ये मकार चालें चलने की भरपूर कोशिशें कर रही है, लेकिन इसे पाक फ़ौज की जानब से मुंह की खानी पड़ रही है। वज़ीर दाखिला आज़ाद जम्मू और कश्मीर वकार अहमद नूर ने कहा कि कनाडा, अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय तखरीबकारी के शवाहिद मिले हैं। भारत के पाकिस्तान पर इल्जामात अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से तवज्जो हटाने का हरबा है। भारत ये साजिशें कर रहा है ताकि पाकिस्तान को आलमी सतह पर दहशतगर्दी की हमायत करने वाला मुल्क साबित किया जा सके। भारत के कनाडा, अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया में भी खुफिया एजेंसियों के ज़रिए तखरीबी सरगर्मियों के शवाहिद सारी दुनिया के सामने हैं। भारत को ये इदराक होना चाहिए कि ऐसी सरगर्मियाँ बहरान को बढ़ा सकती हैं, जिससे इलाकाई सलामती को खतरा लाहक हो सकता है। वज़ीर दाखिला आज़ाद जम्मू और कश्मीर वकार अहमद नूर का कहना था कि पाकिस्तान ने बदअमनी फैलाने और IEDs की नकलो हमल पर भारत से एहतजाज किया है। भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान इसे भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। To join you people. There were a lot of things going on in Islamabad today, but I wanted to make sure that I should be here for this function because I want to tell the world that we want to support hockey in Pakistan. Hockey is our national game, and to be honest with you, we need a lot of work to do for this game. As Interior Minister, as Chairman PCB, whatever support is required, I am here to provide that support. After cricket, hockey is one of our popular game. There are a lot of clubs which are promoting hockey, and Khwaja Junaid Club is taking the leading role of promoting hockey in Pakistan. I want to acknowledge Arshad and Fareed Ahmed both. They are our stars. Both are here right now. I want to acknowledge both of them also. Wherever Fareed is, he is still representing Pakistan, and it's an honor for all of us. I want to especially thank the Dutch ambassador. The way she is supporting hockey. I know this is not the first time she got the teams here. The way she wants cricket diplomacy between Pakistan and Netherlands. It's really remarkable the way she is working for sports in Pakistan as well as in Netherlands. Finally, I don't know if you people will be here on 19th or not, but I would like to invite all the teams, if they will be here, to come and join the Champions Trophy first match in Karachi. If you are around, then I would love to invite you people. So we have a big tournament coming ahead, starting from 19th. It will be almost for like 3 weeks. 8 nations will be fighting with each other, and it will be one of the most, I think, watched tournament in the next coming month or so. So a lot coming ahead. A lot of best wishes for Pakistani team, because I'm sure that this time Pakistani team will win, inshallah, and a lot of prayers required for that. But thank you so much. Thank you. A very special welcome also to our chief guest, the Federal Minister of Interior and Chairman of the Pakistan Cricket Board, Mohsin Naqvi. Your presence here today is highly appreciated
and your support for sports diplomacy is truly commendable. I'm delighted to have the opportunity to host you and to celebrate the relationship between our two countries and our shared love for sports and hockey. Yesterday we did visit the teams, the German and the Dutch team and my team from the embassy. We visited the beautifully renovated Gaddafi Stadium, and I was so impressed to see it because I had visited before, but now it's really in tip-top shape. And I really hope that Pakistan will do excellent in the ICC Championship. نیدرلینڈ سفارت خانے کا ڈچ اور جرمن ہاکی کلب کی ٹیموں کے اعزاز میں استقبالیہ. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی تقریب کے مہمان خصوصی تھے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے تقریب سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ کرکٹ کے ساتھ ہاکی میں بھی پاکستانی پرچم بلند دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے لیے فخر ہے کہ ایک پاکستانی فرید احمد ڈچ ٹیم کی کوچنگ کر رہے ہیں. خواجہ جنید ہاکی کے فروغ کے لیے بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 2 غیر ملکی ہاکی کلبز کے پاکستان آنے کی خوشی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جسٹس محمد اعجاز سواتی صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. یہ کہ بحیثیت قائم مقام چیف جسٹس عدالت عالیہ بلوچستان میں اپنے فرائض اور کارہائے منصبی ایمانداری اور اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دوں گا. یہ کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل کے مروجہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کروں گا. یہ کہ میں اپنی ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا. یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا. اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. آمین. چیف جسٹس حلف برداری کی تقریب. بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس محمد اعجاز سواتی نے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. قائم مقام چیف جسٹس سے گورنر بلوچستان شیخ جعفر مندوخیل نے حلف لیا. ناظرین کھیل میں خوش آمدید. بات کرتے ہیں کرکٹ کی. آپ کو بتاتے چلیں کہ 3 ملکی ون ڈے سیریز کا فائنل آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا. میچ دن 2 بجے شروع ہوگا اور پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست دکھایا جائے گا.
जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार फतह के बाद ग्रीन शिट्स के हौसले बुलंद हैं। सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम अब भी नाकाबिल शिकस्त है। न्यूजीलैंड ने पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 78 रन से जीता, जबकि दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। फाइनल मुकाबले के लिए टिकटों की मांग में भी इजाफा हुआ है। जनरल इंक्लोजर्स के टिकट की कीमत 500 रुपए, फर्स्ट क्लास इंक्लोजर्स की कीमत 1000 रुपए, प्रीमियम की कीमत 1500 रुपए और वीआईपी इंक्लोजर्स के टिकट की कीमत 5000 रुपए रखी गई है। ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जा रहा है। शहर कैद के शायकीन ने क्रिकेट स्टेडियम पहुंचना शुरू हो गए। फैंस कौमी टीम की जीत के लिए कितने पुरुमीद हैं, जानते हैं हमारी नुमाइंदा आयशा आफरीन से। जी आयशा, आगाह कीजिएगा, क्या कहते हैं शायकीन? जी, नेशनल स्टेडियम कराची में आज ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल मैच होने जा रहा है और कराची में हर जानिब इसी हवाले से बातचीत हो रही है और हर बंदा अपने अपने मुताबिक तजज़िया कर रहा है कि आज कौन सी टीम जो है वो फ़तह हासिल करने वाली है, क्योंकि आज का जो मैच है वो बहुत ज़्यादा अहम है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ये फाइनल होने वाला है और जो आगे ICC चैम्पियनशिप ट्रॉफ़ी होने जा रही है उसमें भी जो ओपनिंग मैच है वो इन्हीं दोनों टीम्स के दरमियान खेला जाएगा। और जो लास्ट जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान जो मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान ने रिकॉर्ड फ़तह हासिल की थी, जिसके बाद शायकीन क्रिकेट जो है उनका जो हौसला है वो बहुत ज़्यादा बुलंद हो चुका है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार आज के फाइनल मैच में भी पाकिस्तान ही फतह हासिल करेगा। मेरे साथ इस वक्त कुछ शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी उम्मीदें जो है वो इस वक्त कितने उरूज पर पहुंची हुई हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे कि आपकी जो उम्मीद है कि क्या लगता है कि आज कौन सी टीम की फतह होगी? इंशाल्लाह पाकिस्तान से उम्मीद है कि 100% पाकिस्तान आज चेस करेगा टारगेट और इंशाल्लाह जीतेगा और हम पूरी उम्मीद है, पुरजोश है इंशाल्लाह, और कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तानी टीम को कि ये ट्राई नेशन का जो फाइनल है ये आज फतह याब हो जाए और जीत जाए। दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि चैम्पियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के लिए अच्छा हो जाएगा। अगर आज का मैच ये जीत जाता है तो इंतहाई खुशी का समा होगा। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आपको उम्मीद है कि आज वही पाकिस्तान को फतह दिलवाएं? आज बैटिंग की अगर आप बात करें तो फ़खर जमान और बाबर आजम, और बॉलिंग की आप बात करें तो आज शाहीन आफरीदी आपको बहुत अच्छी फॉर्म में नज़र आएंगे। और शाहीन आफरीदी के साथ स्पिनर, मुझे लगता है आज स्पिनिंग ट्रैक होगा तो स्पिनर्स का ज़्यादा रोल होगा आज। अच्छा, आप अपनी टीम को कुछ सजेशन देना चाहेंगे? आज दोबारा चेस करें, अगर टॉस जीतते हैं तो दोबारा चेस करें, चेस हो जाएगा इजीली। जी बिल्कुल, हमारे जो नौजवान हैं, जो शायकीन क्रिकेट हैं, उनको अपनी टीम से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं और उन्हें यकीन है कि आज जो फतह है वो पाकिस्तान की ही होगी। जी आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, कौमी क्रिकेट टीम के मायानाज बल्लेबाज बाबर आजम एक और संग मील उबूर करने के करीब हैं। बाबर आजम को वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 6000 रन मुकम्मल करने के लिए 10,000 रन दरकार हैं। बाबर आजम ने 122 इनिंग्स में 5,990 रन बना रखे हैं और तेज तरीन 6,000 रन बनाने वालों की फहरिस्त में उन्हें हाशिम आमला का रिकॉर्ड बराबर करने के लिए 10 रन दरकार हैं। इस फहरिस्त में जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला पहले नंबर पर मौजूद हैं, जिन्होंने सिर्फ 123 इनिंग्स में ये संग मील उबूर किया। दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने 136 इनिंग्स में ये कारनामा सर अंजाम दिया। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने 139 मैचों में ये संग मील उबूर किया। बाबर आजम 6,000 रन मुकम्मल करने की सूरत में ये एजाज हासिल करने वाले 11वें पाकिस्तानी होंगे। पाकिस्तान की जानिब से सईद अनवर ने 162, मोहम्मद यूसुफ ने 168, जावेद मियादाद ने 175, इंजमाम उल हक ने 176, मोहम्मद हफीज ने 196, यूनुस खान और शोएब मलिक ने 205, एजाज अहमद ने 210 और सलीम मलिक ने 212 मैचेस में ये संग मील उबूर किया है। जबकि इस फहरिस्त में शाहिद खान आफरीदी भी शामिल हैं, जिन्होंने 274 इनिंग्स में ये कारनामा सर अंजाम दिया है। नाज़रीन, वेदर अपडेट में खुशामदीद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। ताहम शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मुकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्ज हरारत लेह -10,
स्कर्दू, काला -5, गोपस, इस्तौर -4, रावलाकोट, पाराचेनार और बगरोट में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने जानी, अब बढ़ते हैं मेन डेस्क की जानिब। मौसम की इस रिपोर्ट के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। न्यूज़ टीम के हमरा मनाजिर हुसैन और हुमा मलिक को दीजिए इजाजत। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ।